دوستوں کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ رشتے کی شروعات میں وہ شخص وہ انسان آپ کو ہر وقت یاد کرتا تھا، ہر چند منٹ بعد میسج، بار بار کال، یہ پوچھنا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، کھانا کھایا یا نہیں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدل گیا۔ اب نہ پہلے جیسی بے چینی ہے، نہ پہلے جیسا انتظار، اور نہ ہی پہلے جیسی دلچسپی۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید محبت کم ہو گئی ہے، لیکن نفسیات ایک مختلف بات کہتی ہے۔ اکثر محبت اچانک ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا رویہ بدلنے سے سامنے والے کے دماغ میں آپ کی اہمیت بدلنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، لوگ صرف اس شخص کو یاد نہیں کرتے جس سے وہ محبت کرتے، بلکہ اس شخص کو بھی یاد کرتے ہیں جس کی موجودگی ان کے ذہن میں ایک سوال چھوڑ دیتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے چند نفسیاتی رویوں کی بات کریں گے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو معمولی سمجھنے لگے گا یا پھر آپ کی کمی محسوس کرے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری نقطہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ محبت بچانے کی کوشش میں خود ہی اپنے رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں اور پھر دوسروں سے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں رشتوں میں اہمیت نہیں ملتی، لوگ ہمیں ویلیو نہیں دیتے، ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتے، جبکہ ہم ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں، ہم ہر طرح حاضر رہتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات بتانا بند کریں۔ رشتے کے آغاز میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ فطری بات ہے، کیونکہ ہر چیز نئی ہوتی ہے، ہر جواب دلچسپ لگتا ہے، ہر عادت حیران کرتی ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی ایک کھلی کتاب بنا دیتے ہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، کہاں جا رہے ہیں، کس سے ملے، کس نے فون کیا، آج کیا کھایا، دفتر میں کیا ہوا، دوست نے کیا کہا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ محبت محسوس ہوتی ہے، لیکن نفسیات کہتی ہے کہ جب کسی انسان کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے تو دماغ کی دلچسپی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ انسانی دماغ راز کو پسند کرتا ہے، تجسس کو پسند کرتا ہے، نامکمل معلومات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی ہر بات پہلے ہی بتا دیتے ہیں تو سامنے والے کے پاس آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، اسے آپ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، وہ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین نہیں رہتا۔ غلط مت سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں یا باتوں کو چھپائیں، ہرگز نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اپنی پوری زندگی کی لائیو کمنٹری دینا بند کر دیں۔ اگر آپ کسی کام میں مصروف ہیں تو ہر 5 منٹ بعد رپورٹ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گئے ہیں تو ہر لمحے کی تفصیل دینا بھی ضروری نہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کو بھی موقع دیجیے کہ وہ خود پوچھے، آج تمہارا دن کیسا گزرا، تم کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا۔ یہ سوال اس وقت ہی پیدا ہوتے ہیں جب سامنے والے کے ذہن میں کچھ خلا موجود ہو۔ اور یاد رکھیں، دلچسپی ہمیشہ معلومات سے نہیں بلکہ تجسس سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی کو مسلسل بہتر بناتے رہیں۔ آپ نے کچھ ایسے جوڑے ضرور دیکھے ہوں گے جنہیں ساتھ رہتے ہوئے 5 یا 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کے بارے میں اتنے ہی متجسس ہوتے ہیں جتنے شروع میں تھے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ضروری نہیں۔ اصل فرق یہ ہے کہ ان دونوں کی شخصیت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، وہ سیکھتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں، نئی چیزیں آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی رکی ہوئی نہیں ہوتی۔ اب ذرا اپنا جائزہ لیجیے، اگر آج سے 1 سال پہلے بھی آپ وہی انسان تھے، وہی معمول، وہی سوچ، وہی شکایتیں، وہی مصروفیات، اور آج بھی سب کچھ ویسا ہی ہے، تو سامنے والا آخر نئی دلچسپی کہاں سے پیدا کرے؟ جب آپ کی نئی زندگی میں کچھ نیا نہیں ہوگا تو گفتگو میں بھی نیا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر روز وہی باتیں، وہی مسائل، وہی شکایتیں۔ آخر ایک وقت آتا ہے جب دوسرا انسان سننا کم کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو صرف رشتہ مت بنائیے، اپنی ذات میں بھی سرمایہ کاری کیجیے، کوئی نئی مہارت سیکھیے، ورزش شروع کیجیے، کتابیں پڑھیے، اچھی محفلوں میں جائیے، اپنے کام میں بہتری لائیے، نئے لوگوں سے ملیے، نئے تجربات حاصل کیجیے، کیونکہ جب آپ کی زندگی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے، اور یہی توانائی آپ کی گفتگو میں بھی نظر آتی ہے۔ لوگ ایسے انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں جن کی زندگی میں حرکت ہو، مقصد ہو اور ترقی ہو۔ یاد رکھیں، جو انسان خود اپنی زندگی میں دلچسپ نہیں رہتا وہ دوسروں کے لیے بھی دلچسپ نہیں رہتا۔ تیسری بات، اپنے پارٹنر کے لیے سکون بنے، بوجھ نہیں۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، جب آپ کا پارٹنر آپ سے بات کرتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سکون یا دباؤ، راحت یا شکایتیں، خوشی یا ہر بار نئی بحث؟ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے ہر احساس فوراً اپنے پارٹنر کے سامنے رکھ دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر گفتگو شکایت، ناراضگی، رونا دھونا یا
जज्बाती दबाव बन जाए तो ऐसा ऐसा दूसरा इंसान आपसे बात करने से घबराने लगता है। सोचिए, अगर कोई शख्स पूरा दिन काम की थकन, जिम्मेदारियों और ज़हनी दबाव में गुजारने के बाद आपसे बात करे और आप हर बार उसके सामने सिर्फ मसाइल ही रख दे, तो क्या वो अगली बार भी उतनी ही शौक से फोन करेगा? शायद नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जज्बात छुपाएं, बल्कि इसका मतलब ये कि हर गुफ्तगू को सिर्फ शिकायतों का मरकज न बनाएं और वक्त को देखकर बात करें। कभी उसके दिन के बारे में भी सोचें, कभी उसे हंसाएं, कभी उसकी कामयाबी पर खुश हों, कभी उसके लिए हौसला बने। याद रखें, रिश्तों में सिर्फ मोहब्बत इंसान को नहीं बांधती, एहसास, सुकून भी इंसान को वापस ले आता है। अगर किसी को ये महसूस होने लगे कि आपसे बात करने के बाद उसका ज़हनी दबाव कम होता है, उसे अच्छा महसूस होता है, तो वो खुद आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। चौथी बात, अपनी शख्सियत को पार्टनर की नजर से देखना सीखें। ये शायद पूरी वीडियो का सबसे अहम सवाल है। एक लम्हे के लिए अपने जज्बात को एक तरफ रखें और खुद से पूछें, अगर आप खुद अपने पार्टनर होते तो क्या आप अपने साथ वक्त गुजारना पसंद करते? आपकी शख्सियत कैसी दिखाई देती है? क्या आप हर वक्त सिर्फ शिकायत करते हैं? क्या आपकी गुफ्तगू में सिर्फ मायूसी होती है? क्या आपकी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के गिर्द घूमती है, या फिर आप एक पुरएतमाद, मुतवाज़न और अपनी जिंदगी जीने वाले इंसान नजर आते हैं? याद रखें, पार्टनर आपकी बातों से ज्यादा आपकी शख्सियत को महसूस करता है। अगर उसे ये नजर आए कि आपके पास अपनी जिंदगी का मकसद है, आप अपनी इज्जत नफ्स रखते हैं, आपके दोस्त भी हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, आप अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं और आपकी खुशी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर नहीं है, तो वह लाशऊरी तौर पर आपकी कदर ज्यादा करेगा। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि आपकी पूरी दुनिया सिर्फ वही है, आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका एतमाद, सब कुछ उसी के हाथ में है, तो ऐसा ऐसा आपकी अहमियत कम होने लगती है। ये इंसानी नफ्सियात है। लोग उस चीज की ज्यादा कदर करते हैं जिसकी अपनी एक शनाख्त हो, उस शख्स की नहीं जिसने अपनी पूरी शनाख्त किसी और के हवाले कर दी हो। इसलिए अपनी शख्सियत को मजबूत बनाइए, अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखिए, अपनी जिंदगी में ऐसे मकासद पैदा कीजिए जो सिर्फ रिश्ते तक महदूद ना हो, क्योंकि जब आप खुद अपनी नजर में कीमती बन जाते हैं, तभी दुनिया भी आपकी कीमत पहचानती है और रिश्तों में भी यही असूल सबसे ज्यादा काम करता है। पांचवी बात, हर बात पर हाँ कहना आपकी अहमियत कम कर देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं अगर वो अपने पार्टनर की हर बात मानेंगे, हर ख्वाहिश पूरी करेंगे और कभी इख्तलाफ नहीं करेंगे, तो रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इंसानी नफ्सियात इसके बरक्स काम करती है। अगर आप हर फैसले पर फौरन हाँ कह देते हैं, हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, अपनी पसंद, अपनी राय, अपनी हदूद को कुर्बान कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा सामने वाले के ज़हन में आपकी कदर कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की ज्यादा कदर करता है जिसकी अपनी एक शनाख्त और अपनी एक राय हो। सोचिए, अगर हर बार आप ही वक्त बदल लें, हर बार आप ही माजरत कर लें, हर बार आप ही अपनी ख्वाहिश छोड़ें, तो एक वक्त आएगा जब सामने वाला ये सब मामूल समझने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिद करें या हर बात पर लड़ाई करें, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जहाँ जरूरी हो वहाँ अपनी राय एतमाद के साथ पेश करें। अगर कोई बात आपके असूलों के खिलाफ है तो एहतराम से नहीं कहना सीखें। याद रखें, जो शख्स अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करता है, लोग भी उसकी इज्जत करना सीख जाते हैं। छठी बात, अपने जज्बात पर काबू रखना सीखें। रिश्तों में इख्तलाफ होना मामूल की बात है। गलत फहमियां भी होती हैं, कभी जवाब देर से आता है, कभी कोई बात दिल पर लग जाती है, लेकिन असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन हालात में रद्द-ए-अमल कैसे देते हैं। कुछ लोग जरा सी बात पर बार बार गाली करना शुरू कर देते हैं, लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, उनमें शिकवे होते हैं, रोना होता है, गुस्सा होता है, इल्जाम होता है और मुसलसल वजाहत मांगते हैं। ये रवैया वक्ती तौर पर शायद दिल का बोझ हल्का कर दे, लेकिन अक्सर सामने वाले को जज्बाती दबाव महसूस होने लगता है। इसके बरक्स एक जज्बाती तौर पर मजबूत इंसान पहले खुद को संभालता है। वो फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय हालात को समझने की कोशिश करता है। वो अपनी बेचैनी का इलाज सामने वाले से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से करता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एहसासात खत्म कर दिए जाएं, बल्कि एहसासात को सही वक्त, सही अंदाज और सही अल्फाज में बयान करना सीखा जाए, क्योंकि जज्बात पर काबू रखना कमजोरी नहीं बल्कि ज़हनी पुख्तगी की अलामत है। सातवीं बात, अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ एक शख्स को मत बनाएं। ये गलती बहुत से लोग अनजाने में करते हैं। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के गिर्द घूमने लगती है। दोस्त खत्म, शौक खत्म, अहदाफ खत्म और जिंदगी का हर मकसद सिर्फ ये रह जाता है कि पार्टनर खुश रहे। शुरू में शायद ये कुर्बानी मोहब्बत लगे, लेकिन वक्त के साथ यही रवैया रिश्ते पर बोझ बन जाता है, क्योंकि जब आपकी अपनी कोई अलग दुनिया नहीं रहती तो आप हर वक्त तवज्जो मांगने लगते हैं और इंसान फितरी तौर पर उस ताल्लुक से दूर होने लगता है जिसमें उसे हर वक्त जिम्मेदारी और दबाव महसूस हो। इसके बरक्स वो लोग ज्यादा कशिश महसूस होते हैं जिनकी अपनी जिंदगी होती है, जो अपने ख्वाब रखते हैं, अपने दोस्त रखते हैं, अपनी मसरूफियात रखते हैं और रिश्ते को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा तो बनाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं बनाते। इसलिए अपनी खुशी की चाबी हमेशा अपने हाथ में रखें, किसी दूसरे के हाथ में नहीं।
8वीं बात, दुनिया में मजबूत होना काफी नहीं, अपने पार्टनर के सामने भी मजबूत नजर आना जरूरी है। एक हकीकत जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि दुनिया आपकी कामयाबी देखती है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी शख्सियत को महसूस करता है। मैंने ऐसे बेशुमार लोगों को देखा है जिन्हें उनके दफ्तर में इज्जत मिलती है, दोस्त उनकी तारीफ करते हैं, खानदान उन पर फख्र करता है और माली तौर पर भी वो कामयाब होते हैं, माशरे में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, माशरे में उनका मकाम होता है। लेकिन जब बात उनके रिश्ते की आती है, उनके पार्टनर की आती है, तो वो हर वक्त खौफ, बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। वो बार बार यकीन दहानी मांगते हैं, हर वक्त ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला उनसे मोहब्बत करता भी है या नहीं। हर छोटी बात पर घबरा जाते हैं और ऐसा ऐसा वो अपनी वही शख्सियत खो देते हैं जिसकी वजह से सामने वाला कभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। याद रखें, एतमाद का मतलब जज्बात को दबाना नहीं बल्कि उन पर काबू पाना है। अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के सामने सिर्फ अपनी कमजोरी, खौफ और बेबसी ही पेश करेंगे तो एक वक्त आएगा जब वो आपको सहारा देने के बजाय आपसे दूर होने लगेगा। लेकिन अगर आप एक मुतवाज़न शख्सियत के मालिक हैं तो मुश्किल वक्त में भी खुद को संभालना जानते हैं, तो यही चीज आपकी कशिश को बरकरार रखती है और आपके पार्टनर को भी आपके साथ जोड़ के रखती है। 9वीं बात, अपनी जिंदगी की 2 बुनियादों पर जरूर काम करें। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी शख्सियत में वाज़ेह तब्दीली आए तो अपनी तवज्जो सिर्फ 2 चीजों पर मरकूज करें। पहली चीज आपका कैरियर या मकसद और दूसरी आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत। जब इंसान अपने मकसद पर काम करता है तो उसके अंदर खुद एतमादी पैदा होती है और जब वो अपनी सेहत, वर्जिश और फिटनेस पर तवज्जो देता है तो सिर्फ जिस्म ही मजबूत नहीं होता बल्कि ज़हन भी पुरसकून होने लगता है। तहकीकात भी यही बताती है कि बाकायदा वर्जिश ज़हनी दबाव कम करती है, मूड बेहतर बनाती है और इंसान के अंदर एतमाद पैदा करती है। इसलिए अक्सर लोग महसूस करते हैं कि जब वो चंद हफ्ते मुसलसल वर्जिश शुरू करते हैं तो वो रिश्ते के मसाइल को भी पहले से ज्यादा समझदारी से संभालने लगते हैं, क्योंकि अब उनकी पूरी तवज्जो सिर्फ एक इंसान पर नहीं रहती बल्कि अपनी जात की तामीर पर भी होती है। और यही वो तब्दीली है जो लाशऊरी तौर पर दूसरों को भी आपकी तरफ मुतवज्जो करती है। और आखिर में अब सबसे अहम बात, इस पूरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप किसी को नफसियाती खेल खेल कर अपने पीछे लगाएं, बल्कि मकसद ये है कि आप खुद को इतना मजबूत, मुतवाज़न और बावकार इंसान बना लें कि लोग फितरी तौर पर आपकी कदर करने लगे। याद रखें, ये टिप्स आपकी अपनी कदर, आपकी अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए, ना कि दूसरों पर कोई अमल करने के लिए। याद रखें, अगर किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए आपको हर वक्त मिन्नतें करनी पड़े और अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करनी पड़े तो मसला सिर्फ आपके रवैये में नहीं, शायद उस रिश्ते की बुनियाद में भी है। एक सेहतमंद रिश्ता वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की शख्सियत का एहतराम करें और एक दूसरे की तरक्की पर खुश हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको ज्यादा अहमियत दें, आपको याद करें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो अपनी तवज्जो दूसरों के बदलने पर नहीं, खुद को बेहतर बनाने पर लगाएं। अपनी इज्जत नफ्स कायम रखें, अपनी जिंदगी में मकसद पैदा करें, अपने जज्बात पर काबू रखें, अपनी शख्सियत को हर दिन पहले से बेहतर बनाएं, क्योंकि जब आप खुद अपनी नजर में कीमती बन जाते हैं तो दुनिया भी आपकी कीमत पहचानने लगती है। और याद रखें, लोग हमेशा उस शख्स को खोने से डरते हैं जिसकी जिंदगी सिर्फ उनके गिर्द नहीं घूमती। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है और इसमें कोई एक बात भी आपके दिल को लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। और अगर आप पहली बार वारिस की बात देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए नफसियाती असूल और जिंदगी को बेहतर बनाने वाले नए सबक के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।